Hello everyone, I have created this channel to teach middle school students about computer applications, physics, as well as a little bit of maths. I think this channel will be beneficial not only to middle school students but actually anybody who wishes to know something about all these subjects. I won't be focusing on getting marks as most of the videos are there. If you want to fetch good marks in these subjects, you can watch them. But this channel will focus mainly on core knowledge and core concepts that are there to learn. So this video is about the introduction to the object-oriented programming. So I will speak mostly in English, but I will also speak in Hindi. So for those students who don't understand English and for those who don't understand Hindi, so it will be mutually beneficial. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर से, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कोर प्रिंसिपल्स जो बताए जाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है. So all these things are very deep knowledge, and to provide them in the very first chapter itself is like a bit too much to ask for a class 9 student. So it's not fair कि उनको starting से ये इतने broader और deeper concepts सिखाए जाएं. So I will try to break these down into very simpler concepts so that initially a student can understand, and later on if when he has some knowledge about objects and classes, then only he should be able to understand what is encapsulation, what is polymorphism, etc. तो इतना जल्दी ये सब सीखने से स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा. So let's begin. So we have objects in everyday life. अगर हम देखें तो इन द रियल वर्ल्ड इट्स फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि एक टेबल इज़ एन ऑब्जेक्ट, चेयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, even a dog, though it's a living thing, but we can term him as an object. So what is an object means it has something concrete. It has a dimension, it has attributes, it has some characteristics, it can perform some actions. So जैसे एक डॉग है, वो उसका स्किन कलर कुछ हो सकता है, उसका एट्रीब्यूट कुछ हो सकता है, उसकी बार्किंग हो सकती है. एक कैट है, कैट के एट्रीब्यूट्स अलग हो सकते हैं, कैट की बार्किंग अलग हो सकती है. तो इस तरह के रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, तो इफ़ अगेंस्ट द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हम सोचे तो देयर आर सम थिंग्स विच आर एब्स्ट्रैक्ट. सो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हो गया जैसे थॉट इज़ नॉट कॉन्क्रीट, आइडियाज़. सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. सो these are concrete things. तो concrete things और abstract things दो तरीके के हम रियल लाइफ में सिनेरियोज देख सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में चीज़ें थोड़ा डिफरेंट होती हैं. सो इन डिजिटल वर्ल्ड वी विल हैव ऑब्जेक्ट्स, बट दोज विल नॉट बी कॉन्क्रीट इन द फिजिकल वर्ल्ड. जैसे कि सपोज एक विंडो है, एक विंडो होगा, उसका एक टाइटल होगा, उसके कुछ बटन्स होंगे, वो कुछ डिस्प्ले करेगा. बट रियलिटी में दिस इज़ नॉट अ कॉन्क्रीट फिजिकल ऑब्जेक्ट. ये एग्जिस्ट करेगा ओनली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. इट विल शो इटसेल्फ ओनली बिकॉज ऑफ द पिक्सल्स that are shown on the screen. So it's not a concrete physical object, but this window is an object in computers, so it's a kind of a digital object, right?
So inside computer and programming terminologies, these objects are all digital, so they have no physical presence physically. Only current flows inside, and there are bits which are one or either 1 or 0. So that is the only physicality that is there. But apart from that, all the objects, everything is digital. So we call everything as digital objects. So to give an example, a real example is, say for example, uh, a user. A user can be a physical person in a physical world, but in a computer program, a user can be a digital object. User can have a name, user can have email. So all these user details can be shown here. When you log into a website, you will require login password, email password, and then when you log into the window, then your name will be shown here, your email will be shown here, a sign out button will be shown here. So all these attributes are picked up from an object that is created inside the program or the source code of this website or program, whatever is there. So उसमें से ये यूज़र ऑब्जेक्ट लिया गया है, यूज़र ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स लिए गए हैं, और ये जो विंडो पे डिस्प्ले किया गया है। इस तरह से और किसी तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऑब्जेक्ट है। क्रेडिट कार्ड में डिटेल्स हैं, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स है, क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी है, ऑल दीज डिटेल्स आर देयर. सो in real world also there is a credit card, but when your credit card data is stored in the solution in a program, so it's completely a digital object. So these are examples of a digital object. They reside inside the database, inside the system. They are accessed, their properties are accessed by certain applications. They contain them, they access their properties, they modify them, and these objects also can perform certain functions. So like credit card processing, credit card can perform certain function during processing. User can perform certain functions such as, say, change password, some kind of a function user object can perform. So these are the differences between a real world object and a physical object. So this is the basic अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के. ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होता है, वो ये सब हम आगे देखेंगे. सो अभी स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि पहले प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती थी, पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी. इसको लिखते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती थी पहले, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों नहीं होती थी पहले. तो पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ही बेसिक होती थी. सो एक तो बेसिक नाम की ही लैंग्वेज है, लेकिन उससे भी पहले जब ये एडवांस लैंग्वेजेस नहीं बनी थी, जैसे सी बेसिक को बोलते, उसके पहले होती थी असेंबली लैंग्वेज. एंड प्रोग्रामर्स यूज्ड टू प्रोग्राम ओनली इन असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, सीपीयू रजिस्टर्स होते थे. सो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें ऐसे सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड सीपीयू रजिस्टर्स. तो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड होता था, जो प्रोग्राम होता था, उसमें क्या होता था, उसमें यहाँ से इस रजिस्टर से कुछ वैल्यू होती थी, वो रीड करता था प्रोग्राम, फिर उस वैल्यू में कुछ मॉडिफिकेशन करता था, फिर उसके बाद फिर से वो वैल्यू को प्लेस करता था इधर या किसी और रजिस्टर में, वहाँ से कुछ और पिक करता था. इस तरह की प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती रहती थी असेंबली लैंग्वेज में. उसके बाद ये असेंबली लैंग्वेज जो होती थी, ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश कीवर्ड्स बेस्ड होती थी. इसमें ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं था, सिर्फ हार्डवेयर से
कांटेक्ट करने के लिए होती थी। उसके बाद लैंग्वेजेस आई जैसे सी लैंग्वेज थोड़ा सा असेंबली से एडवांस्ड वर्जन पे थी। सी लैंग्वेज में काफ़ी इंग्लिश के टर्म्स ऐड किए गए, काफ़ी इंग्लिश के कीवर्ड्स बढ़ाए गए, और वो डायरेक्टली ऐसे हार्डवेयर रजिस्टर से बात नहीं करती है सी लैंग्वेज। वो थोड़ी सी हायर लेवल लैंग्वेज है, तो वो पहले कंपाइल होगी एक मशीन कोड में, उसके बाद फिर वो मशीन कोड बात करेगा सीपीयू रजिस्टर से। सो ये सारी लैंग्वेजेस जो थी ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है कि एक सेट प्रोसीजर होता है। सो व्हेनेवर देयर इज़ अ प्रोग्राम, सो उस प्रोग्राम में कई सारे सेट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे एक प्रोसीजर ये हो गया, एक प्रोसीजर यहाँ पे हो गया, एक प्रोसीजर इधर हो गया। इस तरह से मल्टीपल प्रोसीजर्स है इस प्रोग्राम में। अगर कुछ ऑप्शन होगा जिसमें इसको ये वाला प्रोसीजर फायर करना होगा, कुछ ऑप्शंस में इसको सेकंड थर्ड, सो इस तरह से। और हर एक प्रोसीजर या तो एक फंक्शन होगा या एक कुछ स्ट्रक्चर, कोड स्ट्रक्चर होगा, कोड कंटेंट होगा, सो एक सर्टेन लाइंस ऑफ कोड होगा। सो जस्ट वो लाइंस ऑफ कोड रन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइल रीड करना है, सो फाइल रीड करके फाइल डिस्प्ले करना है। सो एक फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल में कुछ डेटा है, सो ये एक डिजिटल फाइल है। सो डिजिटल फाइल में डेटा है। सो सपोज प्रोग्राम 1 का जो प्रोसीजर है ये है रीड करने के लिए बनाया गया। सो व्हाट विल हैपन इज दिस procedure will read from the file that is stored on the disk. After that, the program will run a second procedure. So this procedure will then display the contents. It will take the contents from this procedure, whatever the contents that are there in the file, and वो content ले करके अब ये procedure क्या करेगा, ये एक display होगा, display interface। सो ये वो सारे कंटेंट्स डिस्प्ले इंटरफेस पे किस तरह से डिस्प्ले करना है, क्या टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है, क्या डिस्प्ले करना है, ये सब कर सकता है। सो बेसिकली इफ़ यू हैव सीन अर्लियर हिस्टोरिकल कंप्यूटर्स विच हैड दीज DOS बेस्ड प्रोग्राम्स, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड DOS बेस्ड प्रोग्राम्स। सो उसमें ज़्यादा कुछ विंडो नहीं होता था, कुछ भी विंडोड एप्लीकेशन नहीं होती थी, तो उसमें सारा कुछ बेसिकली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी। जैसे एक बेसिक लैंग्वेज होती थी, उसमें फोर्ट्रैन होती थी, कोबोल लैंग्वेज होती थी। सो ये सारी लैंग्वेजेस चलती थी डॉस प्रॉम्प्ट पे, और ये डॉस के कमांड प्रॉम्प्ट से ही रन करते थे। और इस तरह के प्रोग्राम, फाइल रीड करना, फाइल को डॉस के विंडो में डिस्प्ले करना, ये सारे प्रोसीजर्स रन कर करके ये प्रोग्राम्स चलते थे। बट धीरे धीरे जैसे लैंग्वेजेस एडवांस हुई, सो फिर फ्रॉम प्रोसीजरल लैंग्वेज पीपल शिफ्टेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिकॉज प्रोसीजरल लैंग्वेज आर वेरी गुड व्हेन दे टॉक टू द सिस्टम। जितना वो सिस्टम से ज़्यादा टॉक करेंगे उतनी प्रोसीजरल लैंग्वेज अच्छी होंगी। जैसे कि सी लैंग्वेज में सारे ड्राइवर्स बनते हैं, सारे ड्राइवर्स जो है वो सी लैंग्वेज में बनते हैं। आप कोई भी नया कंपोनेंट कुछ भी ऐड करते हो, कीबोर्ड, माउस पैड, टच पैड, एनीथिंग, सो उसके जो ड्राइवर्स है दे आर रिटन इन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दीज आर रिटन इन सी लैंग्वेज। जितने भी डेटाबेस हैं, मोस्टली मेजर डेटाबेसेस, वो सी लैंग्वेज में रिटन है, बिकॉज सी लैंग्वेज इस तरह की लैंग्वेज है जो कि एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है एंड इट डील्स विद द हार्डवेयर कंपोनेंट्स वेरी वेल। सो वो उसके लिए ही बनी है। सो जैसे ड्राइवर्स हो गया, ड्राइवर्स का काम होता है कि कोई भी कंपोनेंट हार्डवेयर पे सही से काम कर सकता है कि नहीं, सो उसके लिए सी लैंग्वेज इज़ वेरी गुड फॉर प्रोग्रामिंग द ड्राइवर्स। सो दीज आर ऑल प्रोसीजरल लैंग्वेज। बट धीरे धीरे क्या होगा कि व्हेन दीज लैंग्वेजेस वर नॉट only concerned about talking to the hardware, but they become more concerned, programs become more advanced for usage by the humans. So DOS operating systems के बाद फिर Windows based operating system आ गया, Windows 95 आ गया, Windows 3.1 आया, फिर Windows 95, 98। So इस तरह से Windows
एनवायरनमेंट में भी डेवलपमेंट होने लगा, प्रोग्राम्स भी जो है वो बेहतर बनने लगे, सो उसके लिए लैंग्वेजेस भी थोड़ा हायर लेवल पे पहुंचने लगी। तो उस हायर लेवल पे लैंग्वेज आने के लिए ये जो प्रोसीजरल सिस्टम था कोडिंग करने का, ये प्रोसीजरल सिस्टम जो है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि ये उतना इफ़ेक्टिव होता है उसके लिए जब आप किसी हार्डवेयर से, रजिस्टर से, सीपीयू रजिस्टर से इस टाइप की चीज़ें करते हैं। लेकिन जब when these languages started communicating direct users ideas to computer systems, so वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं सिस्टम्स, जैसे फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हो गई, इस तरह के सिस्टम्स हो गए। सो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, प्रोसीजर्स बहुत लंबे चलते हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। तो इसके लिए नई नई पैराडाइम डेवलप करनी पड़ी, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आया प्रोग्रामिंग करने का। तो we'll talk in the next section कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है। सो उसके बाद जब ये प्रोसीजरल लैंग्वेज में शॉर्टकमिंग आ गई, तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरफ स्विच ओवर करना पड़ा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब आई, तो उसमें फिर एक स्मॉल प्रोग्राम, इस तरह का प्रोसीजर प्रोग्राम एक प्रोसीजर्स रन करेगा और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सो ये उतना फीजिबल नहीं रह गया। सो उस केस में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट्स, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स जैसे मैंने बताया, जैसे यूज़र ऑब्जेक्ट है, तो प्रोग्राम जो क्या पहले जो प्रोग्राम खुद ही सब कुछ सारे प्रोसीजर्स रन करता था, इट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्शंस। सो देन now it doesn't take all the responsibility, so the responsibility shifts to different objects like user, credit card, like credit card processor. So during login, if you want to log in, then the user will take responsibility. User will have means to save its database, its data in the database. Then credit card processor will have some responsibility of managing credit card payments, fetching the credit card details from the database, showing it or sharing it with other parts of the program. So इस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो है एक enclosed kind of entities बन गए, जो जिसको प्रोग्राम को इतना मतलब नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट्स ये एक्शंस कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रोग्राम बस इनको कमांड्स देता है ऑब्जेक्ट्स को कि ये करवाना है, वो करवाना है, एंड दीज ऑब्जेक्ट्स टेक द डेटा, गिव बैक द डेटा एंड डू सम सर्टेन टास्क। सो इस तरह से ये काम करते रहते हैं। तो इसमें ये बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज पे काम होता है। इसमें प्रोग्राम को एक रिटन सेट ऑफ प्रोसीजर्स नहीं रन करने पड़ते जैसे पहले करने पड़ते थे। इसमें जैसे यूज़र ऑब्जेक्ट को डेटा हैंडल करना है यूज़र रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर को हैंडल करना है उससे रिलेटेड। सो ऑल दीज प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाज confined to these set of objects. So इससे क्या एडवांटेज मिलता है कि इफ़ सपोज क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर अगर हमारा टाइप ए का है, सो बाद में इफ़ सपोज कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की टेक्नोलॉजी में चेंज आया, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर जो है ये काम करना बंद कर गया, उस टेक्नोलॉजी के लिए एक न्यू क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर आ गया। सो ये न्यू क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर अब काम करेगा इसकी जगह, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं। सो अब ये काम करेगा। तो पहले क्या होगा कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में ये सारा जितना रिटन प्रोसीजर है क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग के लिए, ये सारा हमको फिर से लिखना पड़ेगा। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हम प्रोग्राम ये प्रोसेसर को यूज़ करना बंद कर देगा और इसी ये वाला प्रोसेसर यूज़ करना चालू कर देगा। एंड अगर ये फंक्शन कॉल करता है इस पर कोई प्रोसेस पेमेंट का, हम आगे बात करेंगे फंक्शंस एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। सो अगर एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रोसेस पेमेंट, सो इफ दिस फंक्शन वाज कॉल्ड बाय द प्रोग्राम, तो
ये इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कॉल करता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स दे विल प्रोसेस द पेमेंट विद द सेम फंक्शन. सो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि ये सब कैसे होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करेगा और ये क्यों बेहतर हो जाएगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से, और इसके जितने भी सेक्शंस जैसे बताए गए हैं, जैसे encapsulation, polymorphism, abstraction, all these things. So these are not very simple concepts. So to put them in the first chapter of a class 9 student's syllabus is like a little too far fetched. So उसको हमको धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा कि ये क्या है. So I think this video is enough. काफ़ी लंबा हो गया. So we'll proceed further in the next video. So guys, thank you so much for watching, and if you like the video then please hit a like. Thank you.